Good morning, students. Welcome to your accountancy lecture. Today we are going to start with the treatment of goodwill from chapter 5, admission of a partner. So in this case there are various transactions, there are various treatments for the cases of different cases of the goodwill. So first one is the goodwill is paid privately. When the goodwill, first of all you must know that what is goodwill. Rajay, goodwill is the reputation of the business and its nature is it is an intangible asset of the business. It is an intangible asset. Now how will you treat the goodwill in various cases? First, when goodwill is paid privately, it means when the premium for goodwill is paid privately by a partner, then when the word is privately written over here, then it means no entry will be passed because it is paid privately, and in the books of the firm there will be no entry for the treatment of the goodwill. Clear? When goodwill is paid privately. So let's start with its one example. Illustration 18. X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर. नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए. Z पेड 80,000 डायरेक्टली टू X एंड Y. Z ने डायरेक्टली X और Y को 80,000 पे कर दिया एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है, तो पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अब उसने डायरेक्टली पे कर दिया है. डायरेक्टली मीन्स प्राइवेटली पे किया है, तो इट मीन्स देयर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल बिकॉज इट इज पेड डायरेक्टली. इट इज नॉट paid through books of the firm. ठीक है, so no entry for the treatment of the goodwill is passed in case of the when goodwill is paid privately. Now we are going to start with the second case when goodwill is brought in cash by the new partner and it is retained in the business. This one is very important because each and every other treatment of the goodwills are based upon this. So when the goodwill is brought in cash by new partner, जब नया partner goodwill cash में लेके आया है, ठीक है, तो what will be the entry in the books of the firm? जब वो cash में लेके आएगा तो it means you are receiving cash, firm is receiving cash, तो cash account debit टू क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल. इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम अपनी लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे क्योंकि ये गुडविल, ये प्रीमियम जो वो लेके आया है, इसके बदले में हमें उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. तो इट इज़ अवर लाइबिलिटी, सो वी विल क्रेडिट इट एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ द गुडविल. क्लियर? नाउ when this goodwill, when we pay something in return of this goodwill to the new partner, then what will be the entry? लेट्स स्टार्ट कि उसने गुडविल लेके आया है तो एंट्री होगी कैश टू गुडविल. ठीक है, अगर वो कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू capital. When he brought a part of the goodwill, then the entry will be cash account debit to premium for goodwill. When he brought new capital in the business, he introduced capital in the business, the entry will be cash account debit to partners capital account. Is that clear? ठीक है, we can also pass a combined entry for this because one of the aspect is same, that is cash, so we can make a combined entry for these also, that is cash account debit to premium for goodwill and to partners capital account. After that, for this premium of goodwill we have to make the payment. How we will pay? We will close the account. प्रीमियम फॉर गुडविल हमने पहले क्रेडिट किया है, नाउ वी विल डेबिट इट बिकॉज इट इज़ द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. वी विल राइट हेयर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू. कौन देगा इसको? हु इज़ द गिवर? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स. इन विच रेशियो? इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो. Clear? Sacrificing partners means whosoever partner will sacrifice, the amount will be shifted to the premium for goodwill in sacrificing ratio. Clear? Now let's start with the treatment. Rajay, let's see this thing. First of all, when he brought in cash, then entry will be cash to premium for goodwill. Same for capital, cash to
कैपिटल, ठीक है, ये कंबाइन एंट्री पास की है। आफ्टर दैट प्रीमियम फॉर गुडविल हमने पे करना है, तो एंट्री डेबिट हो जाएगी प्रीमियम और क्रेडिट हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। दिस इज इन केस ऑफ दी फिक्स्ड कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में आप फिक्स्ड कैपिटल के केस में आप लोग करंट अकाउंट शो करोगे, ठीक है। अल्टरनेटिवली ये केस भी पास हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वी कैन ऑल्सो पास एन एंट्री न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मोस्टली हम ये एंट्रीज ट्रांजेक्शन पास करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 19. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A and B surrenders 1/2 of their respective shares in favor of C. It means A की सेक्रीफाइस क्या होगी, अपने शेयर का 1/2 उसने दे दिया है, तो 3/5 का 1/2, ठीक है। ए की सेक्रीफाइस क्या है 3/5 का 1/2 और बी का सेक्रीफाइस क्या होगा 2/5 का 1/2, ठीक है। इट मीन्स 3/10 एंड 2/10 इज द सेक्रीफाइसिंग, मीन्स 3:2 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर। नाउ C is to bring his share of premium for goodwill in cash. वो अपना गुडविल का प्रीमियम किस में लेके आया है, कैश में लेके आया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। फर्म का मतलब कि इसमें नया पार्टनर भी है, ए बी और सी तीनों की गुडविल कितनी है 40,000, ठीक है। अब सी का पहले आपको शेयर निकालना पड़ेगा, न्यू शेयर निकालोगे आप, ठीक है। अब जैसे उसने बोला है कि ये 310 उसने से ए ने सेक्रीफाइस किया और ये बी ने सेक्रीफाइस किया। अब सी का जो इसका सेक्रीफाइस होगा वो सी का गेन होगा, तो सी के लिए 3/10 प्लस 2/10 इट बिकम्स 5/10, ठीक है। तो रेशियो क्या होगी 3:2:5, ठीक है ना। तो इट मीन्स 5/10 उसका शेयर हो गया, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 1/2, क्लियर। तो 40,000 का जो 40,000 वो गुडविल ऑफ द फर्म है उसमें से 1/2 नए पार्टनर का शेयर है, ठीक है। दैट विल बिकम 20,000 विच ही ब्रॉट इन कैश। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कितना 20,000 जो नए पार्टनर का शेयर है वो गुडविल, अदरवाइज ये गुडविल पूरे फर्म की दी हुई है, आपने सिर्फ उसी पार्टनर की गुडविल निकालनी है जो न्यू पार्टनर है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कैपिटल वो लेके नहीं आया, कैपिटल की तो बात ही नहीं की, ठीक है। तो प्रीमियम की एंट्री हम पास कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग तो दोनों ही हैं, ए और बी। किस रेशियो में करेंगे अब 3:2 जो उसकी सेक्रीफाइसिंग है, तो 2 A's कैपिटल अकाउंट 2 B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 20,000 का प्रीमियम है जो कैंसिल करना है, किस रेशियो में करेंगे इसको 3:2 की, इट मीन्स 3/5 2/5, ठीक है। 4 2 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8,000। तो इस तरह से हम लोग एंट्रीज अपनी पास करेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट केस इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो डू दैट, अदरवाइज दिस वन इज़ द परफेक्ट वन, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू इलस्ट्रेशन 20 योरसेल्फ, क्लियर। उसके बाद आपने जो एंट्री पास करनी है, ठीक है, उसके लिए आप ट्रांजैक्शन जो भी पास करेंगे उसके लिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बिकॉज दे हैव रिटन दैट पास जनरल एंट्रीज एंड शोज द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। तो आपने कैपिटल अकाउंट भी बनाना है सभी पार्टनर्स का। तो लेट्स जस्ट go through this statement. A and B are partners in the firm sharing profits in the ratio of 2:1. On 1st April 2019 their capitals are this. On that date they admitted C as a new partner for 1/5 share. अब यहाँ पे शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है because it is already given. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी हुई है, ठीक है। C ब्रॉड गुडविल कैपिटल, C कैपिटल लेके आया, तो जब कैपिटल लेके आते हैं तब एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर लेके आया, तो इट मीन C इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड 21,000 एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ऑल्सो, ठीक है। तो ये कंबाइन एंट्री भी पास हो सकती है। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो 21,000 का वो लेके आया है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल सकती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके आपने इसको सॉल्व कर देना है। आफ्टर दैट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा रजे।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको जो ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 4 लाख 2 लाख, उसके लिए आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाय बैंक चला जाएगा सी के अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए में चला जाएगा 7,000 और बी में चला जाएगा 14,000। उसके बाद आप बैलेंस करोगे, वो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन, इस तरीके से, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिवली जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनके अकॉर्डिंग इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। क्लियर? नाउ डू अप टिल हेयर, ठीक है। बैक क्वेश्चन सॉल्व करो रजे, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।